بلوچستان میں خاتون اور مرد کا بہیمانہ قتل، ویڈیو وائرل۔ تمہیں صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غیرت یا بربریت؟ تمہیں صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے۔ خاتون کے آخری الفاظ نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلوچستان کا تازہ زخم، بلوچستان کے علاقے سنجیدی ڈگاری کی خاموش فضاؤں کو ایک بار پھر بارود کی بو، سسکیوں کی آواز اور موت کی گونج نے توڑ دیا۔ غیرت کے نام پر دو جانیں، ایک مرد اور ایک عورت، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ غیرت کا معاملہ تھا یا صدیوں پرانا وحشیانہ نظام جو آج بھی خون مانگتا ہے؟ ذائقے کے مطابق مقتولہ ایک شادی شدہ عورت تھی اور شک تھا کہ اس کا تعلق ایک غیر مرد سے تھا۔ جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی دونوں کو موت کی سزا دے دی گئی، اور موت کی سزا دینے والا کون تھا؟ ایک سردار کی بدماشی سر عام سر چڑھ کے بولی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو نظام ہے، قانون کا نظام اور قوانین، اس کی دھجیاں بکھیرنے والا یہ سردار کون تھا؟ یہ بات سامنے آئی ہے جس کی ڈیٹیل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ نہ عدالت، نہ گواہ، نہ صفائی کا حق، بس غیرت کا فتویٰ اور ٹریگر دبا کے گولیاں چلا دی گئیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے، لیکن تحفظ صرف طاقتوروں کے لیے لگتا ہے کہ ہے، یا وہ مرد جو غیرت کی آڑ میں عورت کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پولیس آئی، لاشوں کو اٹھایا، FIR اب جا کے پتہ چلا کہ ہوئی ہے، اور واقعہ جو ہوا ہے پتہ چلا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ کہیں ایک دو دن بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور ویڈیو بنانے والے کون تھے؟ ویڈیو بنانے والے وہی تھے جو قاتل تھے، ویڈیو بنانے والے وہی چمچے تھے اس سردار کے جو ساتھ مل کے جنہوں نے ان دونوں کی جان لی، اور پھر جان لینے کے بعد چپ چاپ کر کے دفنا دیا گیا، جیسے ان دو انسانوں کی زندگیوں کی کوئی قیمت قدر نہیں ہے۔ کب تک یہ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک ہماری بیٹیاں غیرت کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ کب تک لوگ خاموش رہیں گے؟ کب قانون سے زیادہ قبیلے کا فیصلہ چلے گا؟ کیا ہم 2025 میں بھی اس ذہنیت میں زندہ ہیں جو پتھر کے دور کی یاد دلاتی ہے؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے وہ نظام؟ کیا کسی نے سنجیدی جا کر پوچھا کس نے مارا، کیوں مارا؟ کسی نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی؟ نہیں۔ کسی نے کوئی رپورٹ بنائی؟ نہیں۔ کسی DSP نے بتایا کہ اس کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے؟ کسی SHO نے بتایا کہ اس کے علاقے میں واقعہ ہوا ہے؟ نہیں۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے اسی بدماش سردار کے گنڈوں کی طرف سے ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا۔ جب ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا تو پھر طرح طرح کی من گڑت سٹوریز سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی۔ کسی نے کہا دونوں نے شادی کر لی تھی، اس وجہ سے غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا، جو کہ حکومت بلوچستان کی طرف سے جو بتایا گیا کہ یہ ان دونوں کی کوئی شادی آپس میں نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کے بچے تھے، ان کی اپنی بیوی سے بچے تھے، ان کے اپنے میاں سے بچے تھے، خاتون کے بھی 4-5 بچے تھے، اور جو مرد قتل کیا گیا اس کے بھی 4-5 بچے تھے، لیکن ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ قتل نہیں بلکہ یہ معاشرے کا ریپ ہے، اور اگر ہم نے ابھی آواز نہ اٹھائی تو کل یہ خون اور یہ خون کے پیاسے سردار بلوچستان میں اسی طرح کا ناحق قتل کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی بیٹی شاید دفن ہو چکی ہے، شاید نہیں بلکہ واقعی دفن ہو چکی ہے، لیکن اس کی چیخیں بلوچستان کے پہاڑوں سے گونج رہی ہیں۔ یہ چیخیں ہمیں جگانے آئی ہیں، جاگو، ورنہ اگلی لاش کسی اور بہن، کسی اور بیٹی کی ہوگی، یا شاید تمہارے گھر میں سے کسی کی بیٹی کی ہوگی۔ اتنی آواز بلند کریں کہ آواز ایوانوں جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں تک پہنچے۔ خاموشی بھی جرم ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی تازہ اپڈیٹ
हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी को मैंने सुना, उन्होंने बताया कि ये टेस्ट केस के तौर पे मुझे मेरे चेयरमैन यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस केस को मेरे हैंड ओवर किया और मैं इस केस का सही मानों में यानी कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। अभी तक क्या हुआ ये मैंने आपको बताना है। डिटेल मेरे सामने आ गई है कि ये जो संजीदी डिगारी में गैरत के नाम पर एक खातून और एक मर्द का जो कत्ल हुआ है, इसकी FIR दर्ज कर ली गई है। FIR थाना हन्ना ओड़क कोयटा में SHO नवीद अख्तर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक हजूम इकट्ठे होकर एक औरत और एक मर्द को फायरिंग करके कत्ल कर रहा था। ये वक़ुआ ईद उल ज़ुहा से 3 रोज कबल संजीदी डिगारी के एरिया में रूनुमा हुआ था, जिसमें बानो बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद, कौम सातकज़ई और एहसानुल्लाह को शाह वज़ीर जलाल, फ़िक्री मुनीर, बुख्तियार, मलक, अमीर जान, अजब खान, जान मोहम्मद, बशीर अहमद और दीगर बानो बीबी और एहसानुल्लाह को गाड़ियों में डालकर जनाब ये लोग ले गए थे। एहसानुल्लाह को गाड़ियों में डालकर सरदार शेरबाज खान के पास फैसले के लिए ले गए। सरदार शेरबाज खान ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह का कारोकारी करें, यानी कि ये कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनको कत्ल किया जाए। इसी फैसले की बिना पर मुलजमान ने बानो बीबी और एहसानुल्लाह को संजीदी मैदान में आतिशी असले यानी कि पिस्टल से फायरिंग करते हुए यानी कि उनको कत्ल कर दिया और वक़ुआ की वीडियो भी बनाते रहे। FIR के मुताबिक वाक़े के दौरान वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया के जरिए अपलोड की गई और ताकि अवाम में खौफ व हरास फैलाया जाए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट दफ़ा 302 तेपे और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये है वो स्टोरी, ये है वो असल हकीकत, ये है वो असल खबर जिसके हवाले से सोशल मीडिया पे तरह तरह की तो बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन फैक्ट्स को जुटलाया जा रहा था। अपनी तरफ से जिसके मुंह में जो आ रहा था वो इस वाक़े को बयान करी जा रहा था। कोई कह रहा था कि जी ये भाग इन्होंने शादी की थी, इस वजह से कत्ल कर दिया गया था। ईद उल अज़हा के 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ था और तब तक ये वीडियो नहीं आई थी, किसी को कुछ पता नहीं था। ये 2 दिन में ये वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होने के बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया पे इस पे तरह तरह के तबसरे हमने देखे और लोगों ने अपनी तरफ से ही जो होता है ना, जिसे हाइप क्रिएट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की। इस वाक़े को किसी ने कहा कि औरत को मासूम शो करके इसको कत्ल के हवाले से इस तरह की बातें की। गो कि ये कत्ल नाहक कत्ल, जब कवानीन एक मुल्क में राइज हैं तो कवानीन के मुताबिक सरकार का काम है कि इसके खिलाफ FIR होती, क्योंकि कानून तो हमारे पास यही है ना। तो कवानीन को पसे पुष्ट डालते हुए अगर अपनी मर्जी, अपनी बदमाशी, अपनी उस इलाके में चुदराहट कोई भी अगर ये सरदार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इन लोगों की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। ये जो सरदार किसी भी इलाके में बैठे हैं, ये सरदारों का एक अपना ही निज़ाम होता है। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मकतूल के दरमियान कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने जो कहा, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने डिटेल बताई है कि खातून के 5 बच्चे हैं, मारे गए मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। इस केस में जो भी मुलव्वस होगा इसको गिरफ्तार करेंगे और करार वाक़ई सज़ा देंगे। सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा है कि किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी को भी कत्ल करे। रियासत इस केस में 2 मजलूमों के साथ है जिनका कत्ल किया गया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाऊँगा, दोहरे कत्ल केस में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। इस तरह के कत्ल का कोई मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता। हुकूमत की जिम्मेदारी है गैर कानूनी जिरगों को रोके। हम आइनी और कानूनी रास्तों से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। वाक़े की वीडियो की वायरल होने से पहले नोटिस लिया
लिया और आईजी को मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। जो भी केस में मुलव्वस होगा इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। पहले रोज़ ही कह दिया था कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी है, इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया है, इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं। लोगों को हक़ाइक़ का पता होना चाहिए। इस तरह के बहुत से जिरगे होते हैं, इन्हें रोका भी किया है। हम जिरगों को प्रमोट नहीं करेंगे, हमें आइन के मुताबिक चलना है। उनका ये भी कहना है कि हम इलाके के स्पेशल ब्रांच के डीएसपी को मुअत्तल कर चुके हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, एफआईआर दर्ज करवाने को तैयार नहीं। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए गई तो वो भाग गए और ख़वातीन पुलिस पर पथराव करती हैं। सोसाइटी कहाँ जा रही है ये भी एक सवालिया निशान है। डिगारी क्या है शायद कराची लाहौर बैठे लोगों को पता नहीं। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में मर्द और औरत की बहमीना कत्ल जो हुआ था उसकी वीडियो के बाद ये जनाब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो वीडियो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया नामालूम मुकाम पर एक खातून और मर्द पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमने देखा उस वीडियो में। और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सोशल मीडिया पर एक खातून और मर्द के बहमीना कत्ल की वीडियो वायरल होने का ये नोटिस लिया गया। और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ये ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या, अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। इलाके में इस वक्त सीटीडी और पुलिस भी मौजूद है। ये तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत उनकी तरफ से जनाब ये बताया गया। और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी इस का नोटिस लिया इस वाक़े का। और जुडिशल मजिस्ट्रेट का खातून की कब्र कुशाई का भी हुक्म दे दिया गया है। और डिगारी में खातून और मर्द कत्ल केस की समाअत हुई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मकतूल खातून की कब्र कुशाई का हुक्म दिया। और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में मकतूल खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। दूसरी जानब डिगारी में कत्ल के वाक़े में गिरफ्तार सरदार पकड़ा गया है। शेरबाज खान को अदालत में पेश कर दिया गया है। ये अभी लेटेस्ट है इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं। सरदार शेरबाज को एक रोज़ की डिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के बेमाना कत्ल की वीडियो जो वायरल हुई थी उसके हवाले से। और दूसरा ये है कि जो सरदार शेरबाज खान गिरफ्तार उसको कर लिया गया। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा आपको फौरी तौर पे बताऊं। पहले जो मैंने आपको बताया वो डिटेल बता दी थी और एंड में मैंने आपको जो भी डेवलपमेंट है वो मैंने बताई है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें इस तरह के वाक़यात को हम सारे मिलकर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं दोबारा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।